Hello everybody, this is Shivam Rajput back again with a new video on video series of CS Energy for Sciences. So in this video, I am going to discuss about high Earth orbit. Now this particular topic is requested by 57 students till now, and I am very thankful to you all. If you want further videos on planetary sciences, please let me know in the comment section. I already made a video on low Earth orbit and middle Earth orbit, which is there in the description, so have a look on them. Now let's start this high Earth orbit. This high Earth orbit starts somewhere here. This red zone is called high Earth orbit. This green zone is called middle Earth orbit, and this blue zone is considered as Leo. Leo is low Earth orbit. Okay, so this high Earth orbit starts at a height of 35,786 km more precisely. If you see over here, the height is somewhere here. This is your geostationary orbit. Even geosynchronous orbit belongs to the high Earth orbit. Okay. Now, here we can see this is the exact height of geostationary orbits. So here it is. So let's start with the basics. Now this geostationary and geosynchronous. Okay, so you can say that every geostationary orbit is considered as a geosynchronous orbit, but every geosynchronous satellite is not a geostationary. So what is the difference between them? देखो difference क्या है, चाहे वो geostationary हो या geosynchronous हो, in both case it is synced with the earth, yani it is synced with the earth's rotation. So if you put any satellite over India, it is always there over India, no matter what the month is, no matter what the time is, वो हमेशा उसके ऊपर रहेगा. It is always synced to the that particular place on the earth. Now the difference is geosynchronous orbit is tilted with the equatorial plane, while geostationary orbit is there in equatorial plane. So this is the difference. Okay. One more thing, in a case of geostationary orbit, the satellite is stationary. Means you can say that it is always focusing at a particular coordinate, while in a geosynchronous, it is no doubt वो उस जगह के ऊपर तो होगा, but at the same time it can move up and down. Its IFOV will change, its swath will change, swath में आगे पीछे कर सकता है. So it's not stationary, it's synced, still synced to the Earth's rotation, but at the same time it can move up and down to increase its swath area. Okay, so that is the difference, you can say. Now this geostationary orbit is very thin orbit, you can say. It is exactly at 35,786 km above the equator. It's in equatorial plane. Okay. It orbits in 23 hours 56 minutes 4 seconds. So this is not a solar day. This is a sidereal day. Okay. Now there is a difference between sidereal and solar day. Solar day is of 24 hours. It's time to rotate around one axis. Okay. So एक axis per Earth in 24 hours it rotates once. But this 23 hours 56 minutes 4 seconds is a sidereal day. So it's with respect to the star in a far place. So अगर किसी far place पर कोई star है, उसके respect में अर्थ कितने देर बाद same point को locate कर रहा है उस star के नीचे. Suppose you are facing the star. After 23 hours 56 minutes and 4 seconds, again you are facing the star in some other constellation. So that is your sidereal day. In a case of solar day, it's a time to rotate around one axis, that is 24 hours. And because of this sidereal day, because of this loss of 4 minutes, something 4 minutes, we have leap year after each 4 years. Okay, so first time this experiment of geostationary and geosynchronous is done by SYNCO on August 19, 1964. Now this is very important. It is basically a backbone for this TV industry, for broadcasting industries. Q, why? What is the reason? The reason is it has a wide coverage. मैंने already discuss किया हुआ है. In a case of LEO, we need more and more satellites for maximum coverage. In MEO, we need little bit less as compared to LEO. Suppose you are taking some 4,000 satellites by Elon Musk. He is using 4,000 satellites for Starlink project. Okay, in low Earth orbit. अब वही उनको मियो में करना होगा, he can use only 1,000. That is quite enough. But what if he wants the same internet? स्पीड तो उतना नहीं मिल पाएगा, but अगर कवरेज चाहिए for the entire Earth, he needs only 3 satellites to cover the entire Earth. सिर्फ 3 satellites. That's it. Okay. So what we do is
suppose this is the Earth, we keep all the satellites in this geostationary geosynchronous orbit at 120-degree angle. So the angle between these three satellites are 120. So 120, 120, 120, that is 360. Okay. Second thing, if we keep, say, geostationary orbit is there over the equator, so in this case there is no tracking required, no tracking at all, because it is fixed. So if you keep the antenna on the Earth's surface, it is always pointing towards the that geostationary orbit. We are in India, right? Now in our case we use this dish TV and all. कभी ये देखना घर पे जाकर, तुम्हारे जितने भी डिश टीवी, वॉट एवर इट्स टाटा स्काई, वॉट एवर स्काई डायरेक्ट, वॉट एवर, इट इज ऑलवेज फेसिंग द इक्वेटर. वाई इट इज फेसिंग द इक्वेटर? बिकॉज इंडिया के जो इनसेट सेटेलाइट्स हैं, जी सेट सेटेलाइट्स हैं, इट इज ओवर द इक्वेटर, इट इज इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट. दैट्स वाई हम लोग उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एट सर्टेन एंगल वी आर फिक्सिंग. नो, हम लोग सबके घर में फिक्स कर रहे हैं उसको. क्यों? फॉर दैट ओनली. एंड वाई इट इज सो ह्यूज? The antenna is so huge. Why? What is the reason? ये क्या है? This is the receiver, this is antenna. Okay, तो ये इतना बड़ा क्यों है? Because it is at 36, around 36,000 किलोमीटर. अब सोचो, we know inverse square law. Okay, so inverse square law ये बोलता है कि whenever this particular signals अगर मूव कर रहे हैं स्पेस से, ये लॉस हो जाता है हर डिस्टेंस, मतलब 1 मीटर पर स्क्वायर से ये लॉस हो रहा है, 1/r स्क्वायर से लॉस होता है. इनवर्स स्क्वायर लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट? सो हर 1 मीटर पर वो स्क्वायर टाइम्स का लॉस हो रहा है. सो व्हाट वी नीड अ बिगर एंटीना टू कैच दैट सिग्नल. अगर सोचो सिग्नल बहुत ही कम पहुंचेगा, अगर हम लोग इसके जगह पर इंस्टेड ऑफ दिस मच बिग वी यूज से 1 सेंटीमीटर एंटीना, उस केस में वो सिग्नल कैच नहीं कर पाएगा, राइट? लॉस हो जाएगा डेटा का. सो दैट्स वाई डेटा का लॉस ना हो, वी कीप इट बिग सो दैट कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सिग्नल को ये रिसीव कर सके. एंड देन इट इज इन द कॉन्केव शेप, इसका थोड़ा कॉन्केव शेप होता है, सो दैट एवरीथिंग इज देन फोकस्ड ऑन द रिसीवर. सो इट्स लाइक ये फोकस कर रहा है जितने भी सिग्नल्स आ रहे हैं ना, दिस इज योर रिसीवर एंड दिस रिसीवर इज कनेक्टेड टू द टीवी. ओके, नाउ 120 डिग्री एंगल देखो, इसमें सिर्फ 3 सेटेलाइट चाहिए. सोचो ये बहुत बड़ी बात है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, राइट? नाउ सपोज जी न्यूज़ है. ओके, नाउ इसको ब्रॉडकास्ट करना है, जी न्यूज़ को से ब्रॉडकास्ट करना है लाइव क्रिकेट. व्हाट ही नीड्स बेसिकली अ ग्राउंड स्टेशन. ओके, इसके जो भी होंगे एम्प्लॉयज़, दे आर बेसिकली इन द फील्ड, वो लाइव शूट कर रहे हैं. एंड देन ये ग्राउंड स्टेशन पे जा रहा है डेटा थ्रू इंटरनेट, और वहाँ से दैट डेटा इज नाउ सेंडेड बैक टू द स्पेस. सो सपोज इंडिया इज समवेयर हियर, यहाँ से ये डेटा क्लोजेस्ट जियोस्टेशनरी सेटेलाइट्स को जाएगा. ओके, ये यहाँ से यहाँ गया. अब ये सेटेलाइट इसको इन सेटेलाइट्स को भेज देगा. ओके, अब तुम सपोज अमेरिका में हो, जो कि इंडिया के सपोज एग्जैक्टली अपोजिट है, तो ये देख रहे हो ना, रिसीवर रिसीव किया डेटा, ये डेटा ग्राउंड स्टेशन में गया, ग्राउंड स्टेशन से यहाँ गया, और यहाँ से डायरेक्ट ये गया इस सेटेलाइट को. अब ये वर्ल्ड में कहीं भी इस डेटा को भेज सकता है. इट्स वेरी इजी ना. सिर्फ 3 सेटेलाइट, आप ग्राउंड स्टेशन से वीडियो शूट करो, वीडियो को डालो, और वो फिर पहुँचेगा आपके नज़दीकी जियोस्टेशनरी सेटेलाइट पर. वहाँ से ये ऑल सेटेलाइट्स को पहुँच जाएगा, और उसके बाद अर्थ पर कहीं भी ब्रॉडकास्ट कर दो. बट देर इज़ अ प्रॉब्लम इज देर इज सम लेटेंसी, क्योंकि ये बहुत दूर है. सो डेटा इज नॉट, मतलब हम लोग जो लाइव मैच देखते हैं ना, इवन इफ यू आर इन द प्लेग्राउंड में लाइव मैच देख रहे हो, उसी समय तुम देखो वो लाइव मोबाइल पर, तो यू विल सी कि देर इज सम ग्लिच, सम गैप, मतलब सामने तुम्हारे तुरंत आउट हो रहा है प्लेयर, but in that mobile it will take some 30 seconds, 40 seconds, like that. So it's all because of its distance. It's very far away, right? But by distance doesn't matter, money matter karta hai. So 3 satellites are much cheaper than 4,000 satellites. Okay, so better keep all these things okay at a long distance.
अब देखो सेकेंड क्वेश्चन है कि आई टोल्ड यू दिस पर्टिकुलर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज एट हाइट ऑफ 35,786 किलोमीटर. अब दिस बैंड इज वेरी नैरो, ओके, वेरी वेरी नैरो. सबके पास टेक्नोलॉजी नहीं है टू लॉन्च सच जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स. इन इंडिया वी यूज GSLV, जियोस्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल्स. अब अभी हम लोग मार्क 3 का यूज़ कर रहे हैं, मार्क 4 बन रहा है एंड ऑल टू सेंड हेवीएस्ट सैटेलाइट्स टू द दिस थिंग स्पेस. तो सारे कंट्रीज के पास अपनी लॉन्चिंग व्हीकल्स नहीं है. सेकेंड थिंग कि दे हैव डोंट हैव टेक्नोलॉजी टू सेंड दैट मच ऑफ ह्यूज रॉकेट्स टू दैट डिस्टेंस. अब देखो एक एक 700 किलोमीटर की ऊंचाई पे डालना दैट इज इजी, लो अर्थ ऑर्बिट में कोई भी कर लेगा. बट व्हेन यू टॉक अबाउट दिस जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स, the amount of money required, the amount of technology required is very huge, no? So ऐसे केस में कुछ ही कंट्रीज हैं जिनके पास दे हैव टेक्नोलॉजी, वो लोग भेजते हैं दूसरे के सैटेलाइट्स को. ओके, अब ये चूंकि एग्जैक्टली 35,786 किलोमीटर्स पर दिस जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज देयर, सो ये जो स्पेस है बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है. ओके, अब तुम ये सोचो कि अगर तुम इसके ऊपर रखोगे, यू विल बी देयर इन ग्रेवयार्ड ऑर्बिट, दिस इज योर ग्रेवयार्ड ऑर्बिट. इसके अगर नीचे आ जाओगे तो वो मिडिल अर्थ ऑर्बिट हो जाएगा. सो ये जो लोकेट होता है ना, सब अलग अलग कंट्रीज को लोकेट होता है, एक पर्टिकुलर स्लॉट इन दैट ऑर्बिट. ओके, अब यहाँ आई हैव द लिस्ट. सो 180 डिग्री वेस्ट के ऊपर ये देख लो, इनसेट इंटेल सेट, ये ऑपरेटर है. ओके, वैसे ही अगर हम लोग देखते हैं कि AMC 18 चाहे 139 डिग्री वेस्ट, अगर इसके ऊपर देखो किस कंट्री का राइट है, नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, लैटिन अमेरिका. इसमें कौन सा सेटेलाइट है, कॉस्मोसेट, कॉमसेट. वैसे ही ये दीज आर फॉर वेस्टर्न हेमिस्फीयर. वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हम लोग नहीं आते, वी आर बिलोंग्स टू ईस्टर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि हम लोग ग्रीनविच के ईस्ट साइड है, राइट. सो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आते हैं. देखते हैं इंडिया का. सो ये देखो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में यूरोप के कुछ एरियाज, UK, यूरोप, इधर ही इंडिया होगा, LC इंडिया. अफ्रीका, चाइना, मलेशिया, यू कैन सी ऑल कंट्रीज आर देयर. वेयर इज इंडिया मैन? साउथ ईस्ट एशिया, थाईलैंड, चाइना, यस, लक्जमबर्ग, ऑस्ट्रेलिया. यहाँ देखो ये लिस्ट देखो, रशिया, यस, हियर इज इंडिया. इसरो, ये देख रहे हो, इनसेट, कल्पना, एडुसेट, इनसैट, 4CR, GSAT. ये कितना है, 74 डिग्री ईस्ट, यानी 74 डिग्री ईस्ट के ऊपर, इक्वेटर के ऊपर जो एरिया है, दैट बिलोंग्स टू अस. सो हम लोग वहाँ लाइसेंस कराते हैं एंड देन वी पुट आवर सेटेलाइट्स इन दैट वेरी ऑर्बिट. वहाँ ये सारे जियोस्टेशनरी सेटेलाइट्स हैं. ये इसको इंडिया लॉन्च किया है, इसरो द्वारा लॉन्च हुआ है. देन हियर वी हैव वेदर सेटेलाइट्स, सम कॉमसेट्स, DTH वाले देखो सारे यही हैं. कम्युनिकेशंस वाले, एजुकेशनल कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स, इसमें कितने बैंड्स हैं, उनका टाइम इंटरवल क्या है, किस सेटेलाइट से, किस पर्टिकुलर इससे भेजा गया है, GSLV लॉन्चिंग व्हीकल से भेजा गया है. तो ये देख सकते हो GSLV, ये एरियाना ECA, मतलब ये अपने कंट्री का नहीं है, दूसरे कंट्री का हेल्प लेकर हम लोग भेजे थे, लॉन्च्ड बाई ऑस्ट्रेलियंस, देख सकते हो यहाँ. सो ऑल दिस थिंग्स, सो ये देख रहे हो ना, सारे देश के ऊपर. अब देखो सारे कंट्रीज तो भेज नहीं सकती, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर सपोज अफ्रीका के ऊपर रखना है, तो हम लोग उनका रखेंगे एंड विल टेक चार्ज फॉर इट, विल टेक मनी फॉर दैट, और इवन हम लोग उनको हेल्प करते हैं. सो ऐसे ऐसे कंट्रीज़ को हेल्प कर सकते हैं आप. और ओशंस के ऊपर देयर इज़ मतलब फॉर सबका अधिकार है, लाइसेंस लेना पड़ता है, इंटरनेशनल लाइसेंस. तो ये बहुत ही स्मॉल बैंड है. ओके, अब यहाँ कोई भी सेटेलाइट भेज रहे हो, सेटेलाइट की भी एक टाइमिंग होती है कि से 20 साल चलेगा, 30 साल चलेगा, उसके बाद आपको उस सेटेलाइट को वहाँ से हटाना पड़ेगा, बिकॉज द रीजन इज़ वेरी लेस. तो ऑलरेडी ये रीजन बहुत पॉपुलेटेड हो चुका है. तो हमको क्या करना होता है कि उस सेटेलाइट को लेके आना होता है अर्थ पर. तो अब अर्थ पर लाना इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब, क्योंकि आप एक सेटेलाइट जो कि यहाँ घूम रहा है कुछ सम बहुत फास्ट, यू कैन से कि इसका रोटेशन जो होगा अर्थ के रोटेशन की इक्वल होगा या फास्ट होगा. सोचो, अर्थ का जो सरकमफ्रेंस है दैट इज़ अराउंड 40,000 किलोमीटर. ओके, लेकिन इसका जो सरकमफ्रेंस है इट इज़ मच बिगर देन दैट, नो. इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, ये देखो, हम लोग 2πr जानते हैं. सो डिस्टेंस इज हाउ मच, 35,786 प्लस अर्थ रेडियस 6,400. ओके, उन दोनों को जोड़ दो और फिर 2πr निकाल दो, तो अर्थ से बहुत ज़्यादा इसको सरकमफ्रेंस है, राइट, बहुत ही ज़्यादा होगा. तो
तो यहाँ के ऑर्बिट्स में जो भी सैटेलाइट होंगे उनको और फास्ट मूव करना होगा, बिकॉज डिस्टेंस इज मच नो। अगर अर्थ पर कोई चीज़ घूम रहा है ऐसे इस सरकमफ्रेंस पे, तो चूंकि उसका डिस्टेंस कम है तो उसको घूमना भी कम है, बट ओवर हियर इन दैट मच ऑफ सरकमफ्रेंस इसको बहुत फास्ट घूमना पड़ेगा। तो सोचो उतना फास्ट मूविंग चीज़ को तुमको अर्थ पर लेकर आना है, तो तुमको डी एक्सेलरेट करना पड़ेगा ना। अब देखो 10 की स्पीड से कोई गाड़ी चल रहा है उसको रोकना आसान है, बट अगर कोई भी गाड़ी 100 की स्पीड से चल रहा है उसको रोकना मुश्किल हो सकता है। सो ये इतना फास्ट चल रहा है कि इसको अगर तुम रोकना चाहते हो, अब फ्रिक्शन इज नॉट देयर इन स्पेस, तो हम लोग क्या करते हैं कि रॉकेट्स को उल्टी डायरेक्शन में बूस्टर्स ऑन कर देते हैं। जैसे ऐसे घूम रहा है, सपोज स्पीड इज दिस वे, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है, तो आप बूस्टर्स को एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट कर दो, तो स्लोली 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 35,000 किलोमीटर पर आवर से 34 ऐसे ऐसे करते करते 33 31 लाइक दैट एक टाइम आएगा जब जीरो हो जाए, राइट। सो एक एक पर्टिकुलर स्पीड पर वो अर्थ की तरफ खींचा चलाएगा, गिर जाएगा। बट देयर इज अ प्रॉब्लम इज कि बीच में तुमको मिडिल अर्थ ऑर्बिट है। इन 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 द लोअर रीजन वी हैव लोअर अर्थ ऑर्बिट, जहाँ सेटेलाइट बहुत ज़्यादा है तो उसको हिट कर सकता है, केसलर सिंड्रोम स्टार्ट हो सकता है, चेन रिएक्शन, इट विल डिस्ट्रॉय ऑल द सेटेलाइट्स। सो हम लोग क्या करते हैं कि इन सेटेलाइट्स को फर्दर थोड़ा सा पावर दे देंगे। अगर हम लोग सपोज 3500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से घूम रहा है, उसको 36 अगर कर देंगे तो इट विल मूव टू द, ये इधर आ जाएगा बैकयार्ड रीजन में, ग्रेवयार्ड रीजन। तो दिस इज योर ग्रेवयार्ड रीजन 35,786, जहाँ सारे सेटेलाइट्स वैसे सेटेलाइट्स होते हैं जो यूज़ में नहीं है, जो कि अभी उनका टाइम ख़त्म हो चुका है। तो इसीलिए हम लोग इसको ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में डालते हैं इंस्टीड ऑफ पुटिंग बैक टू द अर्थ सरफेस। ओके, नाउ वन मोर थिंग, एक और इसका बेनिफिट देखो। अगर कोई सैटेलाइट है विच इज़ देयर इन लो अर्थ ऑर्बिट, चाहे यही देख लो अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इट इज़ इन लो अर्थ ऑर्बिट, राइट। अब ये अर्थ की इतने क्लोज है, अर्थ की इतने क्लोज है, आईएसएस को दिखाते हैं तुमको, दिस इज योर आईएसएस, ओके, इट इज़ वेरी क्लोज टू द अर्थ। सो ये बहुत टाइम तक अर्थ के शैडो रीजन में रहता है। ओके, सपोज सन इज ओवर हियर, ये ऐसा ऐसा गोल गोल घूम रहा है, तो बहुत सा टाइम होगा, जैसे ही यहाँ पहुँचेगा तो अर्थ के अब शैडो रीजन में आ गया, क्योंकि अर्थ के नज़दीक। अब जैसे ही अर्थ के शैडो रीजन में आता है, देन इसके अंदर इन्वर्टर जैसी मैकेनिज्म होती है। तो जैसे ही लाइट करता है तो हम लोग इन्वर्टर यूज़ करते हैं टू पावर अप। वैसे ही आईएसएस में देयर आर सम इन्वर्टर्स जो कि जब भी ये डार्क साइड ऑफ द अर्थ में जाते हैं उस समय वो वर्क करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही लाइट साइड में आता है ये, तो फिर से सोलर सेल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी तो दे ही रहे हैं, एट द सेम टाइम वो चार्ज भी करते हैं इन्वर्टर्स को। ओके, सो अब आईएसएस जैसे या लो अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट्स में हम लोग को बहुत बड़े बैटरी को रखना पड़ता है। इसलिए बड़े बैटरीज को रखना पड़ता है क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक दे सकता है पावर सप्लाई नॉन स्टॉप। बट तुम सोचो देयर इज समथिंग ओवर हियर, अब इस पर शैडो कब पड़ेगा, यहाँ शैडो कब पड़ेगा, सन इज ओवर हियर, कोई चीज़ यहाँ है, बहुत नैनो सेकेंड्स के लिए, नैनो सेकेंड नहीं मतलब फ्यू मिनट के लिए पड़ेगा। ओके, डिपेंड्स अपॉन अगेन स्पीड। तो जितने ऊपर जाओगे डार्क एरिया में वो बहुत कम टाइम के लिए रहेगा, तो हमको इन्वर्टर के जो बैटरीज होती हैं उनकी साइज़ को कम करना होगा। घर में क्या होता है कि अगर आपको बहुत देर तक इन्वर्टर यूज़ करना है तो बैटरीज के नंबर्स को बढ़ा दो, कम यूज़ करना है, अगर लाइट आपके घर 10 मिनट के लिए कट रही है तो एक छोटा बैटरी भी, एक बैटरी काफ़ी होगा, राइट। वैसे ही यहाँ फॉर जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स वी नीड फ्यू अमाउंट्स ऑफ बैटरीज, क्योंकि ये डार्क साइड में कम रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये सन में रहता है, एंड फॉर सन वी हैव नॉन स्टॉप 24/7 sun radiation है that is basically converted into electricity by solar cells. So that is the benefit of geostationary satellites. और देखो इतनी हाइट पर अगर हम बहुत ज़्यादा बैटरीज को भेजें तो हमको बहुत बड़ा ही रॉकेट लेना पड़ेगा, राइट। सोच रहे हो, बहुत बड़ा रॉकेट लेना पड़ेगा, क्योंकि देर इज सम लिमिट ऑफ दिस लॉन्चिंग व्हीकल्स। अब GSLV Mark 3 का से 5 टन लोड कैरिंग कैपेसिटी है, उसमें हम लोग से 1 टन का बैटरी ही रख रहे हैं, तो फिर सैटेलाइट कहाँ रखोगे, सेंसर कहाँ रखोगे, फ्यूल कहाँ रखोगे, फ्यूल का भार सबसे ज़्यादा होता है, राइट। सो दिस इज द बेनिफिट विद जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स। ओके, नाउ आई होप दिस इज helpful to you. So that's it for the today. Hope you like the video. Please do like, share, comment and subscribe my channel. And hold on, अगर तुम यहाँ तक रुके हो, so let me tell you one thing. Check out my website www.earthoholicacademy.com right now.
दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। अगर CSIR की तैयारी कर रहे हो तो ये तुमको हेल्प करेगा। नोट माई वर्ड्स।